Ajay sir, this one's for you. Of course, you know, we always say आपके co-stars से हम कहते हैं working with this stalwart. How was it for you? How was it working with this amazing cast? First of all, Fabulous. They all are fantastic actors, and I think everybody knows that. She has outperformed everybody. Wow. Which is fabulous. This kid is damn good. And ज्योतिका के बारे में सबको पता ही है, मैडी के बारे में सबको पता ही है. So it was great. And जब ये this film was more about कि जब हम scenes भी करते थे, तो it was coordination of all actors. वो इतना अच्छा बैठ गया. That's I think what worked very well. So you're this doting father, loving husband, और यहाँ वो helplessness ना हम सब भी feel कर रहे. So कहीं ना कहीं ऐसा you know वो ideal family man जो आप बन गए हो, उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? Because we see you like that. I think it's not just about me. कोई भी इंसान जिसके एक फैमिली होगी, चाहे वो मैरिड हो ना मैरिड हो, बीवी बच्चे या बहन या माँ बाप, I think there is a sense of responsibility, or I think everybody takes responsibility for the family. So मैं भी उनमें से एक ही हूँ. The response is phenomenal. Sir से जैसे मैं बात कर रहा था. Maddie sir, this one's for you. I'll start with you. You know, when you got to know about this, क्या मन में सवाल थे वशीकरण होता है या नहीं होता है? And what do you believe? Do you like believe in it या कुछ experience किया कभी? हाँ, मैंने तो कई बार एक्सपीरियंस किया है, जिसके बारे में हम सुनेंगे कई बार. लेकिन वशीकरण जो है, मैं मानता हूँ कि सिर्फ उसी टाइप की वशीकरण नहीं होती जो हमने फिल्म में दिखाया है. जी. हर रोज आजकल हमारे साथ वशीकरण होता है. सोशल मीडिया आपकी वशीकरण कर लेता है. कुछ दिनों पहले अगर आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम निकला था जैसे ब्लू व्हेल, जहाँ पे टीनेजर्स अपने आप को जो है अपने काबू में नहीं रहते थे और किसी कोई और उनका माइंड कंट्रोल करता था. तो मुझे लगता है कि वशीकरण हर रोज होता है और हमें इससे बच के रहना चाहिए, और इससे कैसे बच के रहना चाहिए वो ये पिक्चर देख के आप समझ जाइए. सर, जितनी ये मुस्कुराहट चेहरे पे आ रही है, आंखों की चमक बचने दोगे नहीं आप, मुझे तो यही लग रहा है. We'll get to know when the movie releases. जानकी, this one's for you. Thank you so much for that wonderful performance. Like बड़े पर्दे को एकदम ऐसा और ब्राइट कर दिया आपने. With these people, you know, जब ये उस फ्रेम में है, आप भी of course you worked इससे पहले, अच्छा काम बहुत किया है, but this time how was it? Well, it was actually quite surreal क्योंकि जब मैंने पहली बार अजय सर को देखा था, माधवन सर को देखा था, ज्योतिका मैम को देखा था, I was actually awestruck. अंदर से मैं बहुत घबराई हुई थी. I was like controlling myself कि नहीं, you are supposed to work with them, you have to be professional and everything, and I managed it a bit well on set, but जैसे ही रैप हुआ, I rushed to Ajay sir for a selfie. Sir, can I have a selfie? To Madhvan sir, can I have a selfie? To ma'am, like can I have a selfie? और इन्होंने भी जो मतलब एक जैसे सर ने बोला कोऑर्डिनेशन होता है, सब होता है, एंड जैसे माधवन सर ने हेल्प की, अजय सर ने हेल्प की, ज्योतिका मैम ने हेल्प की ऑन सेट. सो इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई कैन नॉट आस्क फॉर मोर देन this Bollywood debut. Like, thank you so much, Vikas sir. Really, thank you so much. Thank you so much, Kumar sir, Abhishek sir, Ajay sir. Thank you so much. Thank you so much. Jyotika ma'am, this one's for you. It's so good to see you here. Thank you so much. And, you know, talking about this movie, the portrayal of the character that you're playing on this big screen, talk to us about that. And when you were told about this, कितने लड्डू खिलाए थे? मुझे हिंदी आती है. जी, जी, बिल्कुल. मैं अपनी ट्राई कर रहा था. जी, बताएं. ये अपनी इंग्लिश ठीक कर रहे हैं. जी. Firstly, good afternoon, ellarku vanakkam, and namaste. I think when it comes to a daughter, एक माँ से बड़ी वॉरियर और कोई हो नहीं सकती. और मेरे खुद के बच्चे एग्जैक्टली इनकी उम्र के हैं. मेरी बेटी इनकी जैसी दिखती है. सो मुझे आई डेंट हैव टू पुट एनी एफर्ट इन परफॉर्मिंग एक्चुअली. बस इनको देख के टप टप आंसू आने लगते. तो it is really a vision of a mother, the true vision. और मुझे लगता है कि जब पिक्चर में भूत होता है तो इतना डर नहीं लगता, बट जब रियल लाइफ में कुछ ये एकदम रियलिटी है, इसमें कोई भूत नहीं है, तो उससे ज़्यादा डर लगता है कि हाँ ये हमको हो सकता है. सो आई थिंक इट्स काफ़ी डरावना. हेल्पलेसनेस इज व्हाट हम वो फील कर सकते हैं यहाँ पे, इज व्हाट आई वांट टू से. यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? राइट. शैतान की, कुमार सर मैं आपसे शुरू करूंगा. एक बड़ा आसान सा सवाल. पैनोरामा स्टूडियोज की फिल्म में या आपके साथ काम करने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीतना जरूरी है सर? बिकॉज यहाँ बड़े सारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं.
like actor, director, producer, सबको मिला है. What do you have to say? बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग जिनको नेशनल अवार्ड मिला एक साथ स्टेज पे हैं जी और फिल्म में हैं जी. और सबने मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की है इस पर नेशनल अवार्ड वापस आए. क्या बात है सर, क्या बात है. नाउ टॉकिंग टू द डायरेक्टर साहब यहाँ पे. सर सबसे पहले तो मुझे बताओ ये ऐसे वाले कितने लड्डू खिलाने पड़े थे इस पूरी कास्ट को साथ लाने के लिए, बिकॉज दिस इज अमेजिंग. कितना डिफिकल्ट था या आसान था? I think actually I didn't cast them. I think Ajay and Kumarji and Abhishek cast me in this one. They called me and they said, "Do you watch horror?" I said no. Do you watch dark? Let me say that. When I asked him, he says when we spoke about the film, so he said मुझे रात में बहुत डर लगता है, मैं हॉरर पिक्चर देखता भी नहीं, बनाऊंगा कैसे? I said अगर डर लगता है तो then you're the right person to make it. Right. Yeah. So I said no to all the answers and Ajay said, "हाँ, correct. You're the guy to do this." So I don't know how that worked out. अभिषेक भाई, this one's for you. Please tell us supernatural thriller और इस लेवल पे जाके उसको बनाना क्या चल रहा था जब शुरुआत हुई थी इस फिल्म की? आई थिंक सुपरनैचुरल थ्रिलर एक बहुत बड़ा जॉनर है जो हमारे यहाँ पे बहुत कम बनता है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दीज ब्यूटीफुल टैलेंट राइट नाउ हु एक्चुअली जॉइन द फोर्स राइट नाउ. And yeah, I think execution, so you've seen this beautiful right now, what we did. I think it's a genre which we as an industry needs to tap in. Yes. काफी बड़ा genre है, audience देखना चाहती है. So I think we're doing a good work by starting off the journey right now with this. So I think more of these films will be made, and I think it's one of my favorite genre to get into. I'm sure sir मजा आने वाला है जब इसे देखेंगे. Ajay sir, आपने बोला that you have had experiences and you know even if you haven't had experiences, what is the first thing that you should actually do if you experience something spooky out there? Yeah, like, you know, क्या करना चाहिए? I think you should be mentally and physically mentally strong Yeah. and internally strong because what I believe is that if you weaken from the inside, the other person can overpower you. Yeah. So if your brain is strong enough, then I don't think anything can harm you. मेरा सवाल आपसे है कि आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं और हर किरदार में आपने हम सबको एंटरटेन किया, बट इस किरदार में आपने डरा दिया, लाइक जो ट्रेलर में हमें दिखा. किस तरह से, क्योंकि हमेशा एक आपकी इमेज रही है चार्मिंग, मैडी से शुरू होते हुए और इसके बाद, तो अपने आप को इस किरदार में देखना खुद कैसा था अनुभव? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि जब मैंने तय किया कि ये फिल्म मैं करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम किस लेवल तक जाने वाले हैं या किस लेवल तक लोगों को डराने की कोशिश करने वाले हैं. एक बहुत अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था और पहली बार मैं अजय देवगन सर के साथ काम कर रहा हूँ. एंड आई कांट टेल यू व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट हैज बीन एंड विद द टीम लाइक दिस. कुमार जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत आराम से और बड़े प्यार से सेट पे रहे. हमारा अच्छा देखभाल किया गया और यू नो लोकेशन सेट से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे लगता था कि बहुत पीसफुल माइंड के साथ हम शूट पे गए थे. पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं अपने आप को इस लेवल तक पुश कर पाऊँगा, या मुझे नहीं कभी लगा कि ऐसा कुछ कर पाऊँगा जो लोग वाकई में देख के डर जाएंगे. Hello, this is Jaya here from Bollywood Now. Abhishek, my question is to you. This side. Left leg. Yeah. So we have seen you directing in Drishyam. When can we see you again directing? Like which genre are you going to do next? Drishyam will happen when it's ready on paper, the part 3. And अभी तो फिलहाल मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऑलरेडी खत्म हो गई, तो आई थिंक होपफुली दिस ईयर आई विल बी डायरेक्टिंग माय नेक्स्ट. स्त्री है, उसके बाद जो हॉरर जॉनर है, हॉरर या सुपरनैचुरल, वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया. लेकिन जब आपने काल या फिर भूत जैसी फिल्में की थी, तब ये उतना पॉपुलर नहीं था और ख़ास तौर पर जो सुपरस्टार्स या स्टार्स जो भी कहते हैं, वो इस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे या आना नहीं चाहते थे. तब आपने किया था, तो वो क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते. अगर कोई कमाल की स्क्रिप्ट किसी को मिलेगी तो ज़रूर, क्योंकि ये जॉनर जैसे मैंने पहले भी कहा, दुनिया भर में आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, दुनिया भर में जो हॉरर जॉनर है या जो सुपरनैचुरल जॉनर है वो बहुत चलता है. और हमारे यहाँ भी पहले बहुत फिल्में बनती थी. रामसेस तो बहुत फेमस थे और उनकी सारी पिक्चरें चलती भी थी, चाहे उसमें स्टारकास्ट बड़ी ना हो या जो भी हो. और मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है.
मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, तो मुझे काफ़ी टाइम से करना भी था। और भूत जब मैंने की तो उसके बाद भूत में अप्रिसिएशन भी बहुत हुई। उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कि सुपरनैचुरल जॉनर की है, और अब ये जाके मिली। आपको वश में ऐसी कौन सी बात लगी कि जिसके ऊपर ये ज़्यादा लोगों तक एडेप्टेशन होना चाहिए? कहानी का बेस बहुत स्ट्रांग था, इस वजह से हमने फिल्म की, और बाकी फिर हमने उसकी अपनी अडेप्टेशन करके अपने तरीके से उसको ढाला है। तो बेसिकली जो कहानी और जो मैडी कह रहे थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब आपके बच्चों पे तकलीफ आ जाए और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तब आप क्या करें। ओके, सो क्वेश्चन इज फॉर यू मैडी। सो हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी एंड देन यू सेड कि कॉमेडी वो है कि आप नहीं हंस रहे हो बट सामने वाला हंस रहा है, इमोशन वो है कि आप नहीं रो रहे हो बट यू क्रिएट दैट सीन। यहाँ पर मुझे हॉरर में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है दैट आप चीखा चिल्ली नहीं कर रहे हो बट द काइंड ऑफ expressions that you're giving, the kind of mood that you're creating, maybe that's creating horror. So do you want to elaborate on that aspect? Yeah, I think you adopt different strategies to portray the character correctly. मैंने सोचा था कि इसको ज़्यादा ओवर प्ले ना करते हुए अगर एक चार्मिंग सा बंदा बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसमें वो हॉरर इंट्रोड्यूस करें, तो मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा लगेगा. सो दैट इज ट्राइंग टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल. और उसके बाद जब वो फैल जाता है तो फिर डज इट रियली क्रिएट द फियर. दैट वाज व्हाट द अटेम्प्ट वाज. I have a common question for Ajay and Maddie sir. So the question is, since we know like Ajay sir is playing the hero and you are playing the antagonist, that Shaitan, but like during the pre-production stage or something, have you guys like thought about swiping the roles? Like it's been a while, like Ajay sir haven't played the antagonist. When we started shooting, Maddie said the first thing he told me is, "Why aren't you doing this role? Why have you given it to me?" So I told him that I really feel for the character, the father. So I will not be able to do justice to the other character. It's a much stronger character though. But the character I connect with, I wanted to play that. So now I'm going to make a very, very important statement actually. I have been in the industry long enough to know that I have been a huge fan of Ajay sir's work. I've not had much time to interact with him before this movie. And I have really seen him act, and I've been a huge fan of the way he emotes subtly and does the kind of roles that he does. And even during the publicity, doesn't take any credit, walks away and keeps doing his work. But now I can tell you that if there's any Singham, the real Singham in the industry, it is this man over here who I've become a huge fan of. I'll tell you why. I mean, the film is over. I have nothing to gain by this, but I did ask him that question कि भाई आप ये रोल क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि सबसे मसाला वाला रोल तो इनका है. उन्होंने जो जवाब दिया था वही है. पर जब हमने ये फिल्म शूट की थी ना, उस वक्त हमने टाइटल नहीं डिसाइड किया था. इट वॉज वंडरफुल शूटिंग विद विकास सर एंड अपने द प्रोड्यूसर साहब. मैं हमेशा पूछता था कि फिल्म की टाइटल क्या है, और उस वक्त फिल्म का टाइटल शैतान नहीं था. सो मुझे नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होगा. जो हमने पहले फिल्म में देख रखी थी वो विलन था, पर आपने उसका टीजर देखा होगा. पूरा टीजर इन्होंने बनाया है अबाउट शैतान, विच इज़ माई कैरेक्टर. अब आज मैंने ये ट्रेलर देखा, इसमें भी मतलब पूरा हाईलाइट उन्होंने शैतान को किया है. मुझे लगता है एक शेर दिल और जिगर और एक मैच्योरिटी और इंडस्ट्री के साथ और अपने काम के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए किसी को, कि ऐसा कोई उठा के लड्डू किसी और आर्टिस्ट को दे दे. एंड फॉर दैट आई एम कम्प्लीटली माइंड ब्लोन. मैंने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं अपनी फिल्म में करने के लिए, पर इतना बड़ा प्रोड्यूसर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है, मतलब कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की, और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया. आई मीन आई ओनली होप एंड प्रे कि आई कैन डू जस्टिस टू द काइंडनेस दैट हैज बीन शोन टू मी बाय अजय सर एंड हिज टीम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल सर. थैंक यू सो मच. तो इतने सालों से हम आप लोगों को काम करते देखते आ रहे हैं. आज इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ लगी कि एक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको जितना भी खाली कर दो उसके बाद वो फिर भर के सरप्राइज कर सकते हैं, राइट. और ये मैं जानना चाहूँगा, आप तीनों एक्टर्स को हमने इतना काम करते देखा है, इस फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपके को एक्टर ने आपको सरप्राइज कर दिया, बोला अरे बाबा रे ये भी कर सकता है? क्योंकि कहते हैं जब एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट सरप्राइज करता है, वो उस आर्टिस्ट के लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है. मैं वो जानना चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज एक एक करके. अजय सर, माधवन जी एंड ज्योतिका मैम, प्लीज. आई थिंक इन दोनों ने तो मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि ये जो कर रहे थे मैं एक्सपेक्ट करता था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए हम सबको कास्ट भी किया गया था एक्चुअली. I really don't know. मेरे लिए आई थिंक जानकी
एंड ज्योतिका दोनों, मतलब अजय जी तो स्टॉलवर्ट हैं, पर जितना छूट दे के वो बाकी एक्टर के साथ काम करते हैं वो देखकर मैं अपने आप वो अपनाना चाहता हूँ। पर इन दोनों ने, एक तो ज्योतिका का जो एबिलिटी है टू डू एक्शन, वो देख के मैं हैरान हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ पागल बिल्ली तो कम पड़ेगी, ये अलग ही किस्म की एक्शन हीरो एकदम लिटरली। और जानकी की खासियत ये है कि ये पहले कर चुकी हैं, फिर भी जो सिंसियरिटी और जो हार्डवर्क और जो कमिटमेंट के साथ इन्होंने रोल निभाया, क्योंकि उनका रोल निभाना आसान नहीं था बिकॉज फिजिकली वेरी डिमांडिंग। उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए इट इज़ क्वाइट एक्सेम्पलरी एंड नॉट सीन फ्रॉम न्यू एक्टर्स। आई हैव गॉट अ ग्रेट होप फॉर हर फ्यूचर। So the biggest surprise for me was seeing Ajay the way he conducted himself all through the shoot. मैंने बहुत सारे हीरोज़ के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट ऑल डाउन साउथ, और रिसेंटली मेरी लास्ट फिल्म ममूटी सर के साथ थी, और अब इस फिल्म में भी अजय के साथ। आई हैव जस्ट लर्नड वन थिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि हाउ यू जस्ट गिव अवे। उन्होंने बहुत आई मीन सेल्फलेसली ये पिक्चर की है, एंड ही इज़ जस्ट गिव। इवन पोस्टर में आई डोंट नो, मैं व्हेन आई डू अ फिल्म इन साउथ ऑल्सो विथ माई हीरोज़, कौन इतना पोस्टर में डालता है। मतलब इट्स बिन a pleasure to watch Mammootty sir and Ajay, and to see such these are the real stalwarts of cinema, I feel. You know, लेते तो सब है, देना बहुत I think rare है, तो they are giving back to cinema. I think that's great. And of course Maddie and me, हम 20 साल के बाद पिक्चर वापस कर रहे हैं, तो I think it's a growth for an actor कि आप हीरो हीरोइन के बाद जब आप एक किरदार में एक परफॉर्मेंस देते हो, I think that shows, that makes us feel there's a different relationship altogether. 20 साल बाद जब मैंने इनको बाहों में लिया था, दोनों इमोशंस टोटली डिफरेंट थे। और of course I don't have to say about the kids, like Janki to is the hero of the film, and both of them were, but it was, I can't say competition भी था, हम सब अपने रोल में इतना बैठ गए थे कि it felt like a family. I think पिक्चर भी 25-30 दिन में ख़त्म हो गई because we were all just flowing with it.